Hello class. Now in this lecture we will see how the non-gear vehicle transmission system are work. Non-gear vehicles or non-gear two-wheeler is mostly scooters. So in case of the scooter we are not operating any gear mechanism. We are not having any gear system that can be changed by the driver or the rider. So everything is happen automatically in case of the non-gear vehicle like a scooter. Okay. So Scoot- scooter. So here how exactly they it work that we will going to see. Okay, so in the image you can see the open view of a scooter transmission side. Okay, so this when we open the one side cover of the engine cover of that casing, then you come to, you can easily notice such arrangement is present over here. Okay, so basically there are two shoes are there. Okay, shoe here they are in saying they are using shoe that term for the pulleys. Okay, so there are two pulley or two shoes are there. This is the first shoe which is connected is directly mounted, or the pulley which is directly mounted on the engine crankshaft. Okay, and the second which is called as a primary shoe or primary pulley. Another thing, at the rear there is a another pulley is located. Okay, and that pulley is not directly on road wheel shaft. It is adjacent, that shaft is adjacent to road wheel shaft. This is a road wheel shaft. Okay, और wheel axle बोल सकते हैं हम उसे. So wheel axle के adjacent में parallel एक shaft रहेगा. On that shaft there is a secondary shoe or secondary pulley is mounted, and there is one belt. Okay, belt is running from the primary pulley to the secondary pulley, and this is the secondary pulley, and in front of that there is another system is called as a clutch housing. Okay, so this is a clutch housing which is located on the same shaft. Okay, so this is the thing you have to remember कि जो भी हमारा clutch होता है in case of the non-geared vehicle or the scooter, it is not located on the engine crankshaft. Okay, it is located on the other shaft that is called as a secondary pulley का जो shaft होता है, on that it is located. So on the secondary primary pulley and secondary pulley there is one belt is running. That V belt is used to transmit the power in between them. Okay, after that there is at the another end. Okay, one gear is there. That gear is in engaged condition with the gear present on the wheel axle. So wheel axle, on the wheel axle our wheel is mounted. So road wheels, whenever the power from engine to engine to primary shoe or secondary shoe through clutch के housing के अंदर आता है, after that it will transmit it to the wheel axle. Okay, now here we are supposed to be a focus on the how exactly. Okay, our first of all we will see how exactly our clutch system are working. क्योंकि मैंने बोला यहाँ ये जो है आपका geared vehicle का जो आपका transmission system है, it is a combination of the clutch, automatic clutch, and automatic torque selection. Everything is take place automatic. Only driver need to be a accelerate the vehicle or press the accelerator pedal. Okay, everything is happening with respect to the engine load, and that will be a automatic completely. So first of all we will see how exactly clutch is working. So this is a clutch. Okay, that we will see how it works. So this is a clutch which is used in case of the geared vehicle, and it is called as a centrifugal clutch. Okay, so there is a two things you have to remember first. Okay, you have to consider first. Okay, so this thing is the clutch. This thing is called as a clutch drum. ओके ये जो है उसको क्लच ड्रम बोल सकते हैं या बाउल बोल सकते हैं. सो इट वी आर कॉलिंग एज अ बाउल. एंड सेंटर में जो ये जो है, ओके, इट्स कॉल्ड इज नथिंग बट द फ्लाईवेट शू और फ्लाईवेट प्लेट. ओके, सो ये जो प्लेट है माउंटिंग प्लेट, इस माउंटिंग प्लेट पे फ्लाइंग वेट्स है. ओके, सो इनिशियली दिस फ्लाइंग वेट इज लुक लाइक दिस. ओके, इस पोजीशन में होते हैं. ओके, अब जब मैं इस ये पार्ट और ये पार्ट दो एक कंप्लीटली टू डिफरेंट पार्ट्स है. ओके, जो भी पावर आ रहा है, जस्ट ए मिनट, जो भी पावर आ रहा है प्राइमरी शू से सेकेंडरी शू को, दैट पावर सेकेंडरी शू से हम किसको देते हैं, हम इस प्लेट को देते हैं. ओके, दिस माउंटिंग प्लेट विच कैरिंग अ फ्लाईवेट. ओके,
सो दैट फ्लाईवेट जो है उस फ्लाईवेट के आउटर एज में, यहाँ देख सकते हो आप ऑरेंज कलर की लाइनिंग है, फ्रिक्शन लाइनिंग। ओके, जब भी प्राइमरी शू से सेकेंडरी शू पे स्पीड आता है, वेलोसिटी आरपीएम आता है, ओके, या इंजन पावर आता है, दैट टाइम it get amplified and it transfer to the this mounting plate, and whenever mounting plate receive a power or the rotation from the secondary shoe, those flyweight start to fly in outward direction। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन को फ्लाई होने को स्टार्ट हो रहे, देखो आउटवर्ड, एंड जैसे ही वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई होने को स्टार्ट होते, देयर फ्रिक्शन लाइनिंग, ओके, देयर फ्रिक्शन लाइनिंग मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द बाउल, आउटर बाउल, और वी कैन से दैट क्लच ड्रम और द क्लच बेल। जैसे ही वो क्लच इसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, सो फ्रिक्शन लाइनिंग, इसका फ्रिक्शन लाइनिंग और इसका फ्रिक्शन, मतलब ड्रम का फ्रिक्शन लाइनिंग और या फ्लाईवेट है शू का फ्रिक्शन लाइनिंग एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनाते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस माउंटिंग प्लेट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस शू, द ड्रम आल्सो स्टार्ट टू रोटेट्स। और जितना इंजन का आरपीएम बढ़ेगा, ओके, उतना ये जो स्पीड है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल बॉन्डिंग है, फ्रिक्शन बॉन्डिंग, वो बढ़ेगा, और उतना जो वेलोसिटी लॉसेस है और पावर लॉसेस है वो कम होगा, और उतने स्पीड से हमारा रोड व्हील्स भी स्टार्ट होगा रोटेट होने के लिए। सो नाउ this thing, this mounting plate are receiving the power from the secondary shoe, and the secondary shoe जब एक sufficient speed पे पहुंच जाएगा, that time only the flyweight start to fly outward, because ये आप देखो सकते हो कि यहाँ टेंशन, स्प्रिंग टेंशन है। so जैसे ही velocity rpm sufficient हो गया secondary shoe का, okay, which is receiving power from the primary shoe, and primary shoe receiving power from the engine shaft, that is crankshaft। सो जब सेकेंडरी शू का पावर सफिशिएंट हो गया, आरपीएम उतना सफिशिएंट हो गया कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसको डिफ्लेक्ट करके ये शू आउटवर्ड फ्लाई हो जाए और बाउल को पकड़ के इस आउटर ड्रम को पकड़ ले, दैट इज क्लच ड्रम को पकड़ ले, एंड वो उसको भी पावर ट्रांसमिट करे या कन्वे करे। दैट टाइम ओनली रोड व्हील्स विल रिसीव द पावर। एज सुन एज इंजन का एक्सीलरेटर हमने कम कर दिया, इंजन का एक्सीलरेटर पेडल डिप्रेस कर दिया, so whatever the power coming from the primary shoe and receiving at the secondary shoe will reduces, and those springs, ये जो स्प्रिंग है वो क्या करेंगे, इस ये जो शू है उसको फिर से पुल करेंगे टुवर्ड्स सेंटर। so जैसे ये फिर से पुल करेंगे सेंटर को, ये स्प्रिंग, अभी इस इमेज में स्प्रिंग नहीं दिखा है बट स्प्रिंग रहता है, ओके। सो व्हेनेवर द स्प्रिंग पुल बैक द प्राइम फ्लाई टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे कि यहाँ मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा फिर, तो बाउल और जो माउंटिंग प्लेट इन flyweight की, that will not having any kind of contact, any kind of communication, so mounting plate will only rotating but bowl will not rotate, and bowl is connected to the road wheels, okay। ये जो बाउल है, ये जो आउटर बाउल है, ये रोड व्हील्स को कनेक्टेड है सेंटर शाफ्ट, जैसे शाफ्ट जा रहा है वो सेंट्रली हॉलो, एक हॉलो शाफ्ट से सेंट्रली जाके यहाँ आके आपके व्हील एक्सेल को पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो बाउल जब रोटेट होगा देन एंड देन ओनली रोड व्हील्स विल रोटेट, अदरवाइज नॉट, ओके। सो दिस इज द थिंग कि किस तरह से हमारा एक क्लच एंगेज डिसएंगेज है। सो इंजन आरपीएम विल रिस्पॉन्सिबल, इंजन का एसिलेशन जितना ज़्यादा एसिलेट करेंगे उतने ज़्यादा सफिशिएंट वेलोसिटी, सॉरी आरपीएम मिलने वाला है हमारे माउंटिंग प्लेट को, और दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, एंड सो एज स्प्रिंग गेट डिफ्लेक्टेड, हमारा जो फ्लाईवेट है वो आउटर डायरेक्शन में मूव होगा, और बाउल को पकड़ जो भी हमारा क्लच ड्रम है उसको ग्रैब करेंगे, एंड ड्यू टू द फ्रिक्शनल कांटेक्ट, एंड उसके वजह से हमारा रोड व्हील्स रोटेट होने को स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन दैट वे सेंट्रीफ्यूगल क्लच आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सो जितना डेड वेट रहेगा, ओके, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट mr omega square, m is nothing but the mass of the shoe, r is the radius, and omega is nothing but 2 pi n by 60। so जितना rpm ज़्यादा रहेगा उतना हमारा जो फोर्स है mr omega square, that will be a more, okay। so with respect to the speed हमारा ये centrifugal clutch automatically engage disengage होता है, okay। now we'll see the another thing। अभी ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी शू के अंदर का वर्किंग प्रिंसिपल, ओके। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी शू के अंदर किस तरह से काम होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी शू हमने ऑलरेडी देखा कि उसका पोजीशन कहाँ है,
ये है प्राइमरी शू विच इज ऑन द क्रैंक शाफ्ट, एंड ये जो है जिसके जहाँ से बेल्ट निकल के इस यहाँ आया दैट इज सेकेंडरी शू, और उसके फ्रंट साइड पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। सो यहाँ हम इस स्लाइड में हम उसके प्राइमरी और सेकेंडरी शू के बारे में देखेंगे। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ दिस इज आवर प्राइमरी शू, ओके, एंड दिस इज आवर सेकेंडरी शू। ये है फ्रंट व्यू और ये है साइड व्यू, ये है साइड व्यू, ओके। यहाँ का साइड व्यू इस साइड ही निकला, यहाँ का साइड व्यू इस साइड निकला। सो इट इज अ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से हमने किया है यहाँ, ओके। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक्स रिलेटेड भी, बट ये जो कट सेक्शन है वो प्राइमरी शू का है और ये कट सेक्शन हमारा सेकेंडरी शू का। सो प्राइमरी शू का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। ये जो ब्लू कलर का क्रॉस सेक्शन दैट इज योर ड्राइविंग बेल्ट, ओके। दिस इज अ फिक्स्ड पुली, ये जो पुली है ये फिक्स्ड है, ओके। दिस इज फिक्स्ड पुली। ये जो पुली है प्राइमरी शू या प्राइमरी पुली है वो दो एंड में स्प्लिट होते हैं, ओके, हाफ पोर्शन एंड उसका हाफ पोर्शन, एंड दिस इज फिक्स्ड। एंड ये जो पोर्शन है प्राइमरी शू का वो मूव होता है, ओके। मतलब पुली के दो फ्लेंज होते हैं, ये नॉर्मली पुली के जो फ्लेंज होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ जो पुली है इसके फ्लेंज मूवेबल है, ओके, एक दूसरे से अलग है। सो ये फ्लेंज हाफ फ्लेंज और ये अनदर हाफ फ्लेंज, और इन दोनों के बीच में आपका बेल्ट है, ओके। So after that there is one bowl roller or roller bowl is there, and inside roller bowl there is a roller, this red color का ये जो rollers है, okay। now ये initial position है जब आपकी vehicle stop condition में है। this is the position of the condition of the pulley when your vehicle at the stop condition, okay। and यहाँ देखो, यहाँ जो है इतना जो पोर्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का है, ओके। जो ग्रीन पोर्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ओके। एंड ये जो पोर्शन है ये हमारा सेकेंडरी पुली है जिसके ऊपर ये ब्लू कलर का क्रॉस सेक्शन का बेल्ट दिखा है, ओके। नाउ यहाँ देखिए स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ द दिस सेकेंडरी शू, सॉरी हाँ यस सेकेंडरी शू, ओके। कंट्रोल स्प्रिंग बोल सकते हैं हम उसको। राइट नाउ इट इज अ रिलैक्स कंडीशन, राइट नाउ ये बॉल भी है वो रिलैक्स कंडीशन में है। और देखिए पोजिशन क्या है बेल्ट का, बेल्ट हायर डायमीटर पे है और सेकेंडरी पुली पे, और यहाँ बेल्ट स्मॉल डायमीटर पे है, ओके। डायमीटर छोटा है और यहाँ डायमीटर बड़ा है, और यहाँ भी जो फ्लेंज है पुली के वो एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं, ओके। ये अनदर एंड अनदर फ्लेंज और ये दूसरा फ्लेंज दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स पुश किए हैं इस स्प्रिंग ने। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा बेल्ट है वो आउटर मोस्ट एंड पे है पुली के, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ हमें बड़ा डायमीटर दिख रहा है और यहाँ छोटा डायमीटर दिख रहा है। Now, initially we required a higher torque to initiate or propel the vehicle from the stop position. So that's why छोटा गियर बड़े गियर को या छोटा पुली बड़े पुली को पावर ट्रांसमिट, बट जब छोटा पुली बड़े पुली को पावर ट्रांसमिट करता है दैट टाइम वी आर गेटिंग अ टॉर्क, एंड इनिशियली टू इनिशिएट द व्हीकल फ्रॉम स्टॉप पोजीशन वी रिक्वायर अ टॉर्क, ओके। जैसे हम एक्सेलरेट करेंगे क्या होगा, ये जो बॉल ये जो टॉर्क है वो व्हीकल को दिया जाएगा रोड व्हील्स सेकेंडरी शू के पोजीशन पे। सेकेंडरी शू सेंट्रीफ्यूगल क्लच को पावर देगा और सेंट्रीफ्यूगल क्लच सेंटर शाफ्ट से रोड एक्सेल्स को, रोड व्हील के एक्सेल को, ओके, या ड्राइव एक्सेल को। सो व्हीकल विल इनिशिएट फ्रॉम द स्टॉप पोजीशन। नाउ धीरे धीरे हम और स्पीड बढ़ा रहे हैं, ओके। सो क्या होगा, ये जो हमारे रोलर है रोलर्स इट विल फ्लाई आउटवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इट विल फ्लाई आउटवर्ड्स, और वो क्या करेंगे, ये जो बाउल है हमारे ये इस शेप इस साइड का, ये बाउल उसी जगह फिक्स है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ये जो रोलर है वो आउटवर्ड थ्रो होंगे, एंड जब वो आउटवर्ड थ्रो होंगे तब टू अकोमोडेट द डायमीटर ऑफ दैट रोलर ये जो फ्लेंज है वो इस डायरेक्शन में पुश होने को स्टार्ट करेंगे, और जैसे इस डायरेक्शन पुश होने को स्टार्ट करेगा ये जो बेल्ट है उसका लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस बेल्ट विल स्टार्ट टू गो आउटवर्ड, क्योंकि ये जो फ्लेंज जब इनिशियली एक दूसरे से दूर था, अब ये बॉल रोलर बाहर थ्रो होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये फ्लेंज इस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, और उसकी वजह से ये बेल्ट भी आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश होता जाएगा। और जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा क्या होगा, इस बेल्ट ये जो यहाँ बड़ा डायमीटर अचीव करेगा एंड पे चला जाएगा बेल्ट, और टू because of it is length is unchangeable, so to adjust the belt in between these two pulley ये इस साइड में बेल्ट अंदर की डायरेक्शन में खींचा जाएगा पुली के। सो एज सून एज बेल्ट विल पुल इनवर्ड साइड, ये जो स्प्रिंग है वो इस साइड में प्रेस होके इन दो फ्लेंज के बीच का डिस्टेंस
बढ़ते जाएगा, और ये बेल्ट है नीचे अंदर 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 जाएगा, जो इनिशियली क्या कहा था आउटवर्ड पे था, अब इनवर्ड में जाएगा। ओके, सो नाउ अभी क्या हो गया पोजीशन, बड़ा गियर छोटे गियर को ड्राइव दे रहा है, मतलब बड़ा पुली छोटे पुली को ड्राइव दे रहा है। सो जितना टाइम्स इसका डायमीटर इससे ज़्यादा रहेगा उतना टाइम्स इसका स्पीड इससे ज़्यादा रहेगा। नाउ हमने क्या किया, गियर व्हीकल को और एक्सीलरेट किया, उससे वैसे गियर का अभी टॉर्क कम हो गया, स्पीड बढ़ गया। ओके, सो दिस इज अ कंडीशन एट इनिशियल, दिस इज अ कंडीशन एट द फाइनल, और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ गियर रेशियो हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर स्पीड ऑफ द इंजन, आप कितना एक्सीलरेट करते हो उस में। अभी उसके लिए एक एनिमेशन यहाँ देख सकते हो किस तरह से हो रहा है। ओके, देखिए ये एनिमेशन है जो मैंने अभी बताया, वो उसका ये वर्किंग बता रहा है। ओके, सो दिस इज अ प्राइमरी इशू, दिस इज अ सेकेंड इशू। ओके, सो देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, ये पुली बाहर के रोलर बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है, और टू अकोमोडेट, और ये जो बेल्ट है वो भी बाहर के डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। सो टू अकोमोडेट द लेंथ ऑफ द बेल्ट इन बिटवीन दिस टू पुली अपना डायमीटर एडजस्ट कर रहे हैं टू अकोमोडेट द फिक्स लेंथ ऑफ द बेल्ट इन बिटवीन दिस टू पुली। ये जो पुली है या शू है अपना फ्लेंज को एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ रोलर मैकेनिज्म है और यहाँ स्प्रिंग मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज द थिंग हाउ automatic transmission are working. This is called as a continuous variable transmission, CVT, which is used in case of the scooter. Okay, and it is purely mechanical thing, सब मैकेनिकल थिंग होता है, क्योंकि ये जो प्राइमरी पुली है वो क्रैंक शाफ्ट पे माउंट है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द इंजन स्पीड ये जो रोलर है विल फ्लाई आउटवर्ड। ओके, एंड दीज आर द फ्लेंजेस पुली के, जो मैंने बताया आपको कि flanges are not fixed with each other, they are movable from each other. Okay, to change their diameter, to change the diameter of their end, इस end का डायमीटर इस end का डायमीटर चेंज होना चाहिए। इसके वजह से हमने क्या किया, ये फ्लेंज को एक दूसरे का सॉलिडली कनेक्ट नहीं किया। if they are solidly connected, then what will happen, the इस end और इस end में डायमीटर कभी चेंज ही नहीं होगा। Okay, so this is the thing. So this is called as a CVT drive of non-geared vehicle. I hope you have understood this thing. Thank you.